آج کا حوالہ ہے متی کی انجیل 23 باب پہلی آیت سے 12ویں آیت۔ متی کی انجیل 23 باب پہلی آیت سے 12ویں آیت۔ اونچا کیا جانا۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، خداوند کا دن خدا کے حضور میں آنے کے لیے موقع دیا ہے اور کلام کی بات غور کرنے کو ہے، سمجھنے میں مدد فرما تاکہ خدا کی پاک مرض کو اپنا کر خدا کی خدمت میں آگے بڑھنے والے، برکت حاصل کرنے والے بن سکے، یسوع کے نام میں۔ 23واں باب پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع نے دیر سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے گردنوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑا رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں صدر نشین اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح۔ لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ آج کا کلام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اصل کام کرنے والا بنے، نہ کہ صرف بولنے والے۔ تعلیم تو اچھا دیتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے یہ کر نہیں سکتے۔ آپ تعلیم دے رہے ہو، نیک کام کرو۔ نیک کام کرنا آسان کام نہیں ہے۔ موسیٰ کے حکم کے مطابق پورے اتر کے نجات حاصل کرنے والا ایک ہی بھی نہیں ہے۔ موسیٰ بھی اپنے شریعت پر، یعنی اپنے تعلیم شریعت پر قائم رہتے ہوئے کامیاب نہیں ہوئے۔ موسیٰ بھی ناکام ہوئے۔ اس لیے خدا نے موسیٰ کو ملک کنعان میں جانے کے لیے منع کیا، نہیں جا سکتا۔ ہاں، خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر پورے ملک کنعان کو دیکھنے کے لیے اس کو قوت دیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ملک کنعان، لیکن جا نہیں سکتا۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو کہ موسیٰ کے طور کو پورے طور پر عمل کر کے راس پاس ٹھہر جائے، کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ایک بھی ہوتا تو
खुदावन यीशु मसीह के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदावन यीशु मसीह इसलिए आया कि कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए जान देने के लिए आया, फिदिया में जान दे। इसलिए फकीर फरीसी तालीम दे रहे बहुत अच्छा, लेकिन उस पर नहीं उतर सके। क्यों? फितरती तौर पर ये नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें उम्मीद है और कर सकते हैं। क्यों? खुदावंद ने वादा फरमाया। क्या वादा फरमाया? मैं जाऊं तो क्या करूं? हाँ, उसको दूसरा मददगार का है, दूसरा मददगार रूह कुदुस को भेजो। वो आपके सब तालीम याद दिलाए, बर वक्त क्या कहना है वो बर वक्त आपको बताएगा। ठीक है, यानी फकीर फरीसी जो कर रहे थे वो इंसान की फितरत ऐसा ही है। आज भी हम भी अगर खुदा रूह कुदुस की मदद हासिल नहीं करते तो बोलने में बहुत अच्छा बोलेगा, लेकिन उस पर अमल करने में मुश्किल हो। अमल करने के लिए खुदा रूह कुदुस की मदद की सख्त ज़रूरत है। खुदा ने कहा फकीर फरीसियों की तरह नहीं बनो, का मतलब है नहीं बनो का मतलब मैं आपको मदद करूंगा। फकीर फरीसियों की तरह खिदमत करने वाले नहीं बने, बल्कि उससे बेहतर वाले बनेगा। और वो बेहतर वाले तरीक़ेकार क्या है? दुनिया के तरीक़ेकार से नहीं। अगर बड़ा बनना चाहे तो क्या बनो? छोटा बनो। ये तो दुनिया का तरीक़ेकार नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह के तरीक़ेकार है। और ये खुदावंद यीशु मसीह के तरीक़ेकार को पूरा करने के लिए सिर्फ हुक्म नहीं, मददगार भेजना है। इसलिए हमें ज़रूरत है दूसरा मददगार यानी खुदा रूह कुदुस की रहनुमाई को हर वक्त तलब करना, सख्त ज़रूरत। अभी अभी इबादत के दौरान खुदा का कलाम सुना और खुदा के सामने वादा भी किया और दुआ भी की, और यूं ही बाहर जाते हुए कोई देख लिया तो गुस्सा आ जाता है, ऊंची आवाज में बोलने लगता है, झगड़ा करना शुरू करता है। फकीर फरीसी ऐसे ही करते। क्यों? इंसान की फितरत ही ऐसा है। बहुत अच्छा इल्म रखने की वजह से बहुत अच्छा रासबाज होगा नहीं, ऐसा नहीं। जो खुदा रूह कुदुस उसको मदद करेगा, अन पर भी अच्छा नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ खुदावंद की खिदमत करते हुए लोगों को बरकत देंगे। इसलिए ज़रूरत है खुदा रूह कुदुस की रहनुमाई को हासिल करें। खुदावंद जो तालीम दे रहे हैं, अब रूह कुदुस के हवाले से अभी बात नहीं कर, सिर्फ टारगेट बताया, हदफ बताया, तुम ऐसा करें, फकीर फरीसियों की तरह नहीं। और आपस में क्या नहीं कहलाओ? हादी नहीं कहलाओ, बाप नहीं कहलाओ, लबी ना कहलाओ, दुनिया के तरीके से नहीं, बल्कि खादमानी खिदमत है, खादम बनो। इस काम को खुदा ने हुक्म फरमाया, हुक्म फरमाने के मकसद नहीं होता है मैं ऐसा कर दूंगा। इसलिए यूहन्ना का पहला अंकत उसका 5वां देखो, यूहन्ना का पहला अंकत 5वां, यूहन्ना का पहला अंकत 5वां बाब
13वीं आयत से, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखें कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारे सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया। जो उसकी मर्जी क्या है आज के कलाम में? बड़ा नहीं बनो, छोटा बनो। आए खुदा मुझे छोटा बना दे, समझे? ये दुआ होना चाहिए, छोटा बना दे। लेकिन दुनिया के सब दुआ ऐसा नहीं करते, छोटा बनाने की कोई बात नहीं करते, सर बनाने की कोशिश करते। हमारे बेटे को बेटी को सर बनाना, लीडर बनाना, ठीक है। लेकिन खुदावन फरमा रहे आज के हवाले में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना, छोटा बनने की कोशिश करना, उसकी मर्जी को जान के उसकी खिदमत करने वाले बने। दुनिया के तरीके से फर्क है। ऊंचा किया जाना आज का हवाला है, पहला हिस्सा है, आज इतवार है इसलिए पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा नहीं है। फरोतनी और सदाकत के साथ चलना। खुदाबंद हजूर और अपने शागिर्दों को तंबीह करता है कि वो फरीसियों और शरीयत के उस्तादा के तर्ज़े ज़िंदगी की नकल ना करें। अगरचे मजहबी रहनुमा मौसवी शरीयत की तालीम दुरुस्त तौर पर देते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी उनके अल्फाज से मुताबिकत नहीं रखती। वो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत अवामी वकार और समाजी मर्तबे में मशहूर हैं, जबकि हकीकी फरमाबरदारी और खुदा के साथ ताल्लुक़ को नज़रअंदाज करते हैं। खुदाबंद यीशु उनकी तालीम और अमल के दरमियान मौजूद खला को बेनकाब करता है और अपने पैरोकारों को नसीहत करता है कि वो दुरुस्त तालीम कबूल करें लेकिन रियाकारी को रद्द करें। हकीकी शागिर्दियत दोनों चीज़ें दुरुस्त अकीदा और दुरुस्त तर्ज ज़िंदगी मांगती है। दयानतदारी के साथ चलने का मतलब है कि निजी और आवामी ज़िंदगी में यकसा होना। हमें बड़े और छोटे कामों में वफादार रहने का कहा गया है। खुदाबंद यीशु के पैरोकार उसकी मानंद होने चाहिए जिसकी पैरवी वो करते हैं। ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो आजिज़ी, सच्चाई और खुदा की खिदमत में वफादारी से आरास्ता हो। आपके ख्यालात और अमाल किन शोबों में खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हैं, उनका इकरार खुदा के सामने करें और उससे तकदीस की दुआ मांगें ताकि आपके अल्फाज, रवैये और अमाल निजी और अवामी दोनों जगहों पर मुसलसल मसीह की अक्कासी करें। चिल्ली के लिए इकट्ठे शिफायत करें। आबादी 1,86,64,652। बड़े मजहब रोमन कैथोलिक 57%। लादेन
25.7%. यूनिजेनिकल या प्रोटेस्टेंट 16.2%. चिली एक जनूबी अमेरिकी मुल्क है जो ग्लेशियर्स, जलून और नदी नालों से मालामाल है, और यहाँ का दिलकश अटाकामा शहराबी वाक़या है। उसे स्पेन ने नौ आबादी बनाया था, लेकिन इसने 1810 में अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। अगरचे चिली की सकाफत में हिस्पानोवी खसूसियात वजह हैं। मुल्क की मुकामी नस्ल और सकाफत की असल जोरों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है। मुल्क ज़्यादातर कैथोलिक है, लेकिन मुख्तलिफ मज़हब निस्बतन अमन के साथ आबाद हैं। इसके बावजूद चर्च मादी परस्ती जैसे मसाइल से निमट रहा है, और बाज़ चर्च यकजहती के फुकतान का सामना कर रहे हैं। दुआ के नुकात: दुआ करें कि रूह कुदस ईमानदारों को एक दूसरे के साथ यकजहती बरकरार रखने की मजबूत ख्वाहिश अता फरमाएँ। खुदा की तारीफ़ करें कि चिली में मज़हब की आज़ादी ने इंजिल की गवाही देने के मौका फराहम किए हैं। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, बड़ा बनने की हवाले से जो तालीम दिया है उस पर मद्देनज़र रखते हुए खुदा रूह कुदस की रहनुमाई की सख्त ज़रूरत महसूस करते हुए मिन्नत करते हैं। हम सबों को शुरू तकदीस कर और रूह कुदस से मामूर कर, ताकि रूह की रहनुमाई को असर करते हुए कामरानी के साथ ज़िंदगी बसर करने वाले खादमा बने, और मिलकर चिली के मुल्क की खिदमत के लिए दुआ करते हैं। खुदावन मज़हब के आज़ादी तूने दी है। खुदावन सच्चाई को पहचानने में मदद फरमा, ताकि इंजिल को समझ सके और खुशखबरी को दूसरों तक पहुँचाने वाले काम करते हुए आसमान के बादशाह में दाखिल होने वाले ज़्यादा हो। आज के दिन के लिए बरकत चाहते हैं। लाइव तौर पर खुदावंद की खिदमत करने के लिए मदद फरमा, यीशु के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर, कि हम भी अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बच जाओ। उनके बादशाही कुदरत हमेशा तक रही है, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, उसका शराकत, हिफाजत अब सबों के साथ और ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तो